Hello, hi, namaste everyone. I am Monica. Welcome back to this channel that is Moni Super Classes. As we all know that our Union Budget 2021-2020 has been out on 2nd or 3rd of February, and every source of information, whether it is a news channel, it has been covered this Union Budget in a very comprehensive manner, and very short clips highlighted has been shared on a WhatsApp and other source of applications. So I have come up or prepared a expected MCQ that can be asked on your national level government examination based on this same Union Budget 2021-2022. So before that, if you are new to this channel, subscribe to the channel, click the bell icon so you will be keep updated whenever I post a new video on this channel. So I guess that's a lot for the intro. Without further delay, let's just hop into the video. First question we have, in the given below option, choose which of the following is the sixth pillar of Union Budget 2021-2022. Maximum government governance and minimum government, health and well-being, physical and financial capital structure, inclusive development for aspirational India. इस प्रश्न के अंदर आप लोगों को वो चूज करने हैं जो हमारा यूनियन बजट है, इसके कुछ 6 पिलर हैं, 6 यानी 6 जो क्षेत्र हैं उनको ध्यान में रख के हमारा जो यूनियन बजट है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है. तो इनमें से कौन से हमारे यूनियन बजट 2021-2022 का पार्ट है? So you can pause the video, give the answer yourself and check whether you are right or wrong. So the answer is all of the above. Let me share with you the question here the solution part. So this is the union budget will rest on the 6 pillar, यानी इसके 6 जो अहम जो क्षेत्र हैं वो ये है: हेल्थ एंड वेलबींग्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, and innovation and research and development, minimum government and maximum governance. This is a very important and this can be asked in your examination as a टैगलाइन. तो मिनिमम गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट कम होगी, मैक्सिमम गवर्नेंस मीन्स ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, बायसनेस नहीं होगी, हर एक चीज़ को एज इट इज़ रखा जाएगा जनता के सामने. ओके, सो इट्स अ वेरी गुड टैगलाइन एंड दिस इज़ द मोटो ऑफ आवर यूनियन बजट 2021-2022. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, it says which article of Indian constitution the union budget of a year, also known as a annual financial statement, which is estimated expenditure and receipt of the government for a particular period. Option A article 114, option B article 112, option C article 19 and option D none of the above. So ये कह रहा है कि जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. तो कौन से आर्टिकल में हम यूनियन बजट को, जो हमारा बजट है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं? और एनुअल फाइनेंशियल यूनियन बजट है क्या, बाय द वे? इट इज़ बेसिकली द एस्टिमेटेड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें जितनी भी हमारे एक्सपेंडिचर्स, हमारे खर्चे होते हैं और जो गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिलती है, जो उसका जो एक एस्टिमेशन है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको बोलते हैं हम बजट. और हम बजट को, यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के अंदर? तो आंसर है आर्टिकल 114. आर्टिकल 114 के अंदर हम अपने यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Union Budget 2021-2022 propose a setup of Central University dash for accessible higher education. Option A Assam, Option B श्रीनगर, Option C Leh, Option D इम्फल. तो यूनियन बजट 2021 और 2022 के अंदर जो सरकार ने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात की गई है, किसके लिए? ताकि हम हायर एजुकेशन को और एसेसिबल बना सके हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारे यंगस्टर के लिए, दोज हु वांट टू स्टडी. तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ सेटअप करने की बात की गई है? ले के अंदर. राइट ऑप्शन इज ले. तो ले के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात यूनियन बजट में प्रपोज की गई है.
So next option or question we have, what percentage of fiscal deficit is packed out of GDP in annual estimate budget 2021 to 2022 and which will be financed or funded through the central government or central borrowing. Okay, option A 6.8% of GDP, 9.8% of GDP, 8.6% of GDP and 4.5% of GDP. तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है जो हमारा जीडीपी है उसको हम फिस्कल डेफिसिट से पैक करते हैं. पैक का मतलब जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कुछ परसेंटेज होता है हमारे जीडीपी का, उस जीडीपी का परसेंटेज होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट. ओके, तो जो हमारा एनुअल एस्टिमेटेड बजट है उसमें कितना परसेंटेज हम जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट को दिया गया है. तो और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, हम कैसे किसके थ्रू हम फंडिंग करते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट बोरिंग होती है, जो सरकार की जो बोरिंग्स होती है, जो सरकार को मिलती है उसके थ्रू, जो सरकार लोन लेती है, टैक्स के थ्रू जो भी कलेक्शन इकट्ठी होती है उसको, उससे जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसके उससे हम फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं. ठीक है, और जो फिस्कल डेफिसिट है एक इसका स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है बजट के अंदर, डिसाइड क्या होता है जो जीडीपी का पार्ट होता है. तो जो पार्ट है वो कितना है, यू कैन पॉज द वीडियो. ओके, एंड डिसाइड. सो जो पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का, दैट इज, please ignore the background voice as some of the children are playing cricket over there. So the option is 6.8% of GDP. जो इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6% 8 है हमारे जीडीपी का. ओके, नाउ काइंडली फोकस ऑन दी स्लाइड. इट सेज एज वी नो दैट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक जो हमारी रिकवरी, जो हमारी इकोनॉमिक की जो शेप है, इट्स गोइंग टू बी अ एक्सट्रीमली स्टीप वी शेप. इसका मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर वी शेप क्यों है. 2020 के अंदर बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग और पेंडेमिक हमारी जो इकोनॉमी एकदम नेगेटिव में चली गई थी और उसके बाद अब ये धीरे धीरे रिकवर कर रही है. इट्स गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट इन आर यूनियन बजट अप टू 2021 और 2022 वी कैन एबल टू मैच द लेवल एज कंपेयर विद अदर कंट्री. इट्स नॉट विद इंडिया. हर एक कंट्री की, चाहे यूरोपियन यूनियन, ईच एंड एवरी कंट्री सम हाउ विद सम एक्सटेंट, सम आर विद अ मोर एक्सटेंट हैज़ बीन अफेक्टेड विद दिस कोरोना थिंग. तो इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी एकदम वी शेप की हो गई, यानी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, नेगेटिव हो गई थी आई वुड से 2020 में, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है. तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है 2020 और 2021-22 के अंदर हम एक लेवल मैच कर लेंगे. ओके, वी आर एबल टू मैच द लेवल एज कंपेयर टू द जो डेवलप्ड इकोनॉमी है. Next question we have the vision of setting up Higher Education Commission of India, for which a legislation will be introduced this year, Union Budget 2021 to 2022. Higher Education Commission of India will be an umbrella body having a 4 separate vehicles such as a standard setting, accreditation, production, funding. Option B standard setting, accreditation, regulation, funding. Option C standard setting, accreditation, promotion, fundings. Standard ऑप्शन डी स्टैंडर्ड सेटिंग्स, एक्रीडेशन, फंडिंग एंड रेगुलेशन. सो जो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूनियन बजट है उसके अंदर जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है, जब हमने लेजिस्लेशन ने वो इंट्रोड्यूस किया है ये कमिंग ईयर में 2020-2021 में, जो तो उसको हम अम्ब्रेला बॉडी बोलते हैं. और इस अम्ब्रेला बॉडी के ना 4 सेपरेट व्हीकल हैं. तो वो क्या क्या कौन कौन से व्हीकल हैं जो हमारे हायर एजुकेशन को एक स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करेंगे. तो जो आंसर है वो है हमारा यस, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड सेटिंग. पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे अपनी हायर एजुकेशन कमीशंस का, उसके बाद हम एक्रीडेशन प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी आर रेगुलेटिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर. उसके बाद हम उन इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे. दिस इज़ द राइट ऑप्शन. यू कैन एलिमिनेट दिस क्वेश्चन ईजिली. लाइक प्रमोशन इज़ नॉट द पार्ट. प्रमोशन वैसे ही लाइक एलिमिनेट हो जाएगा. ये ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत सही हो सकता है. और आप देख रहे हो यहाँ पर पहले फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, देन रेगुलेशन. फंडिंग ऑलवेज बी फॉर द लास्ट, राइट. जो फंडिंग होती है वो लास्ट में प्रोवाइड की जाती है. ये वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो आप इसको. एंड प्रोडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन. तो ईजी क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय एलिमिनेशन. ये एलिमिनेशन से ईजिली सॉल्व हो जाएगा. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम और अभियान
what are the initiative will be taken for strengthening the MSME and industrial sector? Option A, PM Garib Kalyan Yojana, collateral free loan for businesses, disaligns the global tender फॉर अप टू 200 करोड़ और ऑल ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी आत्मनिर्भर भारत स्कीम है और अभियान चलाया जा रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, उसके इनिशिएटिव के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी उसको और मजबूत बनाने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जो एमएसएमई क्या होता है, जो हमारे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, तो उसके इस स्कीम के अंदर क्या क्या जो न्यू चीज़ें इनिशिएटिव ऐड किए गए हैं हमारे बजट 2021 और 2022 में। पीएम गरीब कल्याण योजना ये पार्ट है इसका या नहीं, कोलेट्रल फ्री लोन फॉर बिजनेस एंड डिसअलाइन द ग्लोबल टेंडर अप टू 200 करोड़। जो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज अ ऑप्शन डी। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर इसका जो पार्ट है रीज़न देखो यहाँ पर इसका जो पार्ट है, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द एक्सप्लेनेशन थिंग। हाँ, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर इस जो हमारे इंडस्ट्रियल, जो हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में को स्मूथ फंक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर कोलेट्रल फ्री लोन फॉर बिजनेस, जो हमारे बिजनेसेस हैं उनको ये बोला गया है कि उनको लोन लेने के लिए वो उनको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो फंडिंग है और यस गरीब कल्याण योजना भी इसके अंतर्गत है। जो हमारी स्कीम है यूनियन बजट के अंदर, स्कीम का जो नाम है जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा जो है आत्मनिर्भर भारत स्कीम। इसके अंदर जो हमारे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प किया जाएगा कि वो आगे बिजनेस कर सके। सबऑर्डिनेट डेब्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया गया है ग्लोबल टेंडर को अप टू 200 करोड़। इसका मतलब ये है कि 200 करोड़ की जो लिमिट है इससे ज़्यादा अब इस लिमिट के अंदर जो भी ग्लोबल टेंडर है, हम मतलब जो ग्लोबल टेंडर यानी बाहर से किसी को टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, तो अल्टीमेटली जब बाहर से नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट करेगी गवर्नमेंट, तो फिर जो मेजर जो बेनिफिट होगा, जो हमारे इंडिया के जो हमारे डोमेस्टिक्स जो मैन्युफैक्चर हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा कि उनसे काम लिया जाएगा, राइट। तो इससे अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। So next question we have, a government of India is supported a many research institution and colleges in Indian city। सही बात है। For cut above synergy among these institution, Union Budget 2021-22 to propose first option A formal umbrella structure, blue grant, option C A and B and option D none of the above। So for example cut above का यहाँ मतलब है for the better, एक better synergy के लिए। Now what is synergy? Synergy means when two or more organization or institution or businesses, enterprises joined a hand together and work as a single entity, so that resultant would be they can increase their production power, they can utilize the limited resources, right, in a very efficient manner। हिंदी में बोला जाए तो जब एक और दो से ज़्यादा, अगर दो बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी, जब वो हाथ मिलाएंगे ए और बी एक साथ मिलकर एक दूसरे, जो भी अगर इसके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बी लिमिटेड के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो दोनों एक ही जॉइंट हैंड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो जो सिनर्जी होती है, मतलब बोलते हैं ना हिंदी में एक से भले दो, तो उसके लिए उसको एफिशिएंट बनाने के लिए अगर भारत में सिनर्जी को एफिशिएंट बनाना है, जो रिसर्च को सपोर्ट करना है, राइट। और यहाँ पर जो बात हो रही है ये देखो हायर एजुकेशन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस की बात हो रही है हमारे जो इंडियन सिटीज़ के अंदर, तो और यहाँ पर सिनर्जी की भी बात की जा रही है यूनियन बजट के अंदर। तो वो क्या प्रपोज करता है, तो ऑप्शन इसमें ये है ऑप्शन ए और बी, जो फॉर्मर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर ये भी इसका पार्ट है, और ग्लू ग्लांट। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑटोनोमी दी जाएगी, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉलेजेस हैं, एक प्रॉपर ऑटोनोमी दी जाएगी और उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, राइट, उनको और सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यूनियन बजट 2020-2022 प्रपोज विच मेजर स्कीम ऑफ माइग्रेंट वर्कर। जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं कौन सी स्कीम ये प्रोवाइड करता है, मतलब क्या स्कीम है हमारे यूनियन बजट 2020 और 2021 के अंदर। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। सो ऑप्शन ए, 1 नेशन 1 कार्ड, 1 राशन कार्ड, फ्री फूड वीट्स और नन ऑफ द अबव। जो हमारे माइग्रेंट वर्कर है, जो हमारी लेबर क्लास है इंडिया की, राइट, तो उसके लिए जो ऑप्शन है, जो हमारे यूनियन बजट के अंदर जो स्कीम चलाई जा रही है वो है 1 नेशन और 1 कार्ड। दिस इज द राइट ऑप्शन। लेट मी टेक यू टू द एक्सप्लेनेशन स्लाइड।
जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, यूनियन बजट 2021-2022 के अंदर 2 स्कीम चलाई जा रही है उनके लिए कि वन नेशन वन कार्ड, यानी आप अगर आप माइग्रेंट वर्कर हैं तो आप या आपकी फैमिली एक ही राशन कार्ड से जो क्या है वो राशन ले सकते हैं, राइट, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जो फ्री फूड है, फ्री फूड ग्रेन सप्लाई माइग्रेंट्स को दिए जाएंगे। Moving on the next question, Union Budget 2021 to 2022, what new initiative has been proposed to enable the wealth of governance and policy related knowledge on internet being made available in a major Indian languages? Option A, National Language Translation Mission. Option B, National Translation Language Mission. Model Indian Language Mission. National Language Translation Mission. अब इसके अंदर पॉइंट ये है कि हमारे जो यूनियन बजट 2021 और 2022 के अंदर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं हमारी वेल्थ को लेकर, यानी जो हमारी गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा इनेबल बनाया जाए। तो इसके लिए जो इंटरनेट, देखो यहाँ पर जो ये बेसिकली बात हो रही है, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है ना उनके लिए बात हो रही है, जो भी गवर्नमेंट पोर्टल है और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है, कि इनको ना ताकि और भी ज़्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट देख लो, अगर वो इंग्लिश में है, यूजुअली क्या होता है कि हिंदी में ऑप्शन होता है कि आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करके पढ़ सको, लेकिन ये जो राइट ऑप्शन है, जो हमारा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, इस इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी मेजर्स हैं, राइट, उनको ना एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसलेशन बनाया जाएगा। उन लैंग्वेजेस भी आज अब से प्रोवाइड होंगी हमारे यूनियन बजट के अंदर। ये स्कीम चलाई जा रही है और जो स्कीम का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। जो स्कीम का नाम है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, कि अब भी जो गवर्नमेंट वेबसाइट और पॉलिसीज़ हैं, आप सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं, जो भी मेजर जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें भी अवेलेबल होंगी, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रपोज अ स्कीम to extended the Ujjwala scheme up to dash from a existing dash from dash crore beneficiaries. Option A 1 crore 8 crore, option B 3 crore 8 crore, option C 2 crore 8 crore, option D 4 crore and 7 crore. So let me explain you what is Ujjwala scheme. So Ujjwala scheme क्या है? Under this scheme, Ujjwala scheme, this scheme has been back in set up in around 2017 or 2018. or under this scheme what government provides, so the right son of establishment of this scheme. Okay, so this scheme has been launched by our Prime Minister Narendra Modi some in the year of 2016, and the right date is 1st May 2016, to distribute a 50 million LPG connection to the women's. Okay, and that too दोज फैमिली हु बिलोंग द बिलो पॉवर्टी लाइन। हिंदी में बोला जाए तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के अंदर 2016 से ये स्कीम चली आ रही है, तभी ये स्टैब्लिश हुई थी। और इस स्कीम के अंदर जो एलपीजी गैस कनेक्शन है ना, महिलाओं को प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन फैमिली को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है हमारे भारत में, राइट। तो अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट की गई है हमारे जो बजट है, यूनियन बजट 2021-2022 के अंदर। अभी जो क्या है कि कितना एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है इसको, और करंट कितना है। तो राइट ऑप्शन है 1 करोड़ और 8 करोड़। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ जो फंडिंग है वो सरकार ने और एक्सटेंड कर दी, यानी फंडिंग सरकार 1 करोड़ और करेगी। अभी कितना है? 8 करोड़ है राइट नाउ। उज्ज्वला स्कीम के अंदर इतना खर्च किया जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 9 crore. From now on, Union Budget 2021-22 proposed that from now on 9 crore has been spent or will be spent, from this on this Ujjwala scheme. तो अभी 9 करोड़ जितना खर्चा हमारे उज्ज्वला स्कीम में किया जाएगा। Okay, so I do not want this video long, so I want to this video keep short and simple. So I am ending over here, right? I will be back with a series second based on same expected MCQ of Union Budget 2021 to 2022. Okay, so you give that much time. Thank you so much, and keep smiling. Do like this video if you feel that this video adds something, something in your knowledge domain. And till then, have a nice day. Bye for now.